Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નો હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। तृणमूल के आंतरिक कलह पर पंचायत मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान। कहा, विधानसभा में कौन बहुमत साबित करेगा यह कोर्ट और स्पीकर तय करेंगे। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बाद पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी का आंतरिक विभाग उनका विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में किसका बहुमत है, इसका फैसला स्पीकर, चुनाव आयोग और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगा। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार इस विवाद से अलग है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने विधानसभा में मौजूद विपक्ष की जरूरत पर भी जोर दिया। আজ একদিকে কাল একদিকে কোনটা ঠিকঠাক এটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। বিধানসভায় মাননীয় স্পিকার দেখছেন, কোর্টে গেছেন, আদালত দেখবেন, তহবিল কে নেবে, কার্যালয় কে নেবে, কে কোন এমপি এমএলএ কোন পার্টি কোন গোষ্ঠীতে যাবে, এটা ওনার ভেতরের ব্যাপার। এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। আপনারা নিজেরা বিধানসভায় ফ্লোরে যে প্রমাণিত করবে মেজরিটি সেই হবে, আর এটা তারা বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করবো, এটা আমরা চাই। নির্মল নাটক আলোচনা নিয়ে দুইসুর সৃষ্টি করছেন, ঝগড়া বাড়ছে, জল্পনা আরেকদিকে ফাঁকা হচ্ছে কালীঘাট, ভিড় বাড়ছে শিবিরে, এবার সঙ্গে শান্ত মিলছে। কালীঘাট তো আগেই ফাঁকা হয়ে গেছে, আর তাতে মমতা ব্যানার্জি এত হতাশ হয়ে গেছেন, নিরাশ হয়ে গেছেন। সেদিন বারুইপুরে গেছিলেন, নিজের পার্টির লোককেই চড় মারছেন। এটা চরম হতাশার নিদর্শন। ক্ষমতা চলে গেলে মানুষ কি হয়, এটা ওনাকে দেখলে বোঝা যায়। বিমানবন্দর থেকে মসজিদ চলছে, কলকাতা বিমানবন্দর মসজিদ সরানোর সম্ভাবনা। सिलीगुड़ी के सोरासोरी शंकर कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ने सुनी 50 लोगों की शिकायतें, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में आयोजित सीधे शंकर कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने आम लोगों की शिकायतें सुनी। करीब 50 लोगों ने भूमि विवाद समेत विभिन्न समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने सभी शिकायतें की जांच कर जल्द समाधान का भरोसा दिया और कहा कि लोगों की समस्याएं सीधे सुनने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में आयोजित किया जाएगा। জায়গা থেকে আসছে যে আমি কমপ্লেন করেছি, কিন্তু কমপ্লেনটা কোনো ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়নি, এনকোয়ারি হচ্ছে না। যেমন ভোরের আলো থানা নিয়ে একটা কমপ্লেন আসলো, তো আমরা চাই যে সেই থানার সাথে কথা বলবো যে কেন হচ্ছে না। এটা একটা সিস্টেম, সরকার তো সবাইকে নিয়ে, পুলিশ হোক, কর্পোরেশন হোক, সরকারি কর্মচারী হোক, এই সিস্টেমে সবাই যাতে মানুষের সহযোগিতা করে সেইটাই আমরা চাই। আমরা তো কাউকে এখান থেকে নির্দেশ দিতে পারি না, আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করতে পারি। আর তারপরে যদি সরকারের নিয়ম না মেনে কেউ কাজ করে তাহলে আমরা যথাযথ জায়গায় সেই ব্যাপারে। দাদা, টিটিএফ থেকে কি কোনো নতুন কিছু ইনভেস্টমেন্টের কথা বেরোলো? আজকে এটা সরাসরি শঙ্করের সেবাদান, ফলে এখানে আর সমস্যা দেখা যায় জমি, খুব জমি সমস্যা নিয়ে কি ভাবনা ছিল? এই পুরো বিষয়টি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। सिलीगुड़ी में दादाबाई स्पोर्टिंग क्लब की खूंटी पूजा के साथ दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू। दुर्गा पूजा की तैयारियों के तहत सिलीगुड़ी के देशबंधु पारा स्थित दादाबाई स्पोर्टिंग क्लब में पूरे विधि विधान के साथ खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही क्लब ने अपनी 45वीं दुर्गा पूजा की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ कर दिया। क्लब के आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष भी आकर्षित थीम, भव्य पंडाल और शानदार लाइटिंग के जरिए श्रद्धालुओं और दर्शकों को खास अनुभव देने की तैयारी की जा रही है। দাদাভাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এই পুজোটা করে এবং তারা নিজেদের মধ্যে ধ্যান রাখে যে সত্যি সত্যি সমস্ত নর্থ বেঙ্গলবাসী এই পুজোটার দিকে তাকিয়ে থাকে। শিলিগুড়ি তো থাকেই। একটা জিনিস মনে রাখবেন, আমাদের যে ভারতবর্ষের কালচারের 700 বছরের মুঘল ছিল, 200 বছর ইংরেজরা ছিল, তা সত্ত্বেও আমাদের এই যে সনাতন কালচার আমাদের রক্তের স্রোতের মধ্যে দিয়ে আজকে বয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই পুরাতন যুগ থেকে এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কেন? যে মানুষের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, সেই চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে আমরা এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এবং এবারের পুজোতে সবসময় দেখবেন যে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে, পুরাতনের সঙ্গে মেলবন্ধন করে আমরা আমাদের নূতন প্রথা দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আশা করছি এবারে গতবার
বা তার আগের যে পুজোগুলো হয়েছে সমস্ত চিন্তাভাবনাকে तृणमूल नेता पर सगे भाई को पैतृक संपत्ति से बेदखल करने और करोड़ रुपए की धोखेधारी का आरोप, जांच शुरू। मालदा के वैष्णव नगर में एक तृणमूल नेता पर अपने बड़े भाई को पैतृक संपत्ति से बेदखल करने और करीब 1 करोड़ रुपए की धोखेधारी का आरोप लगाया। पीड़ित जियाउल हक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। वहीं आरोपित तृणमूल नेता अजीमुल हक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि संपत्ति उनके पिता ने दी थी। पुलिस दोनों पक्षों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। উনি ব্যবসা করছিল, হ্যাঁ ব্যবসা করছিল, ব্যবসার সমস্যার কারণে ও আমার কাছ থেকে একটা টাকা ধার নিয়েছিল 9,95,000 টাকা। সেই টাকাটাকে ও না করার পরে টালবাহানা করার পরে বেশ কিছুদিন পরে আমাকে একটা চেক দেয়। হ্যাঁ চেকটা আমি ব্যাংকে করি, সাবমিট করি, ব্যাংকে চেকটা বাউন্স হয়। বাউন্স হওয়ার পরে আমি ওই চেকটাকে কমপ্লেন করেছিলাম। কমপ্লেন করার পরে ও এটাকে মানে কাউন্টার মামলা হিসাবে আমার এগেনস্টে ও শামসেরগঞ্জ থানাতে আমার এগেনস্টে চেক চুরির কমপ্লেন করেছিল। কমপ্লেন করার পরে ও তো মানে এখন কোর্ট থেকে ওনাকে করেছে, নোটিশ করেছিল। তারপরে উনি কোর্টে হাজিরা দিয়েছে। হ্যাঁ এই 9,95,000 টাকা ঘর করার জন্য বিভিন্নভাবে আমাকে হ্যারাসমেন্ট করছে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ওনার জমি সম্পত্তি। बैरकपुर की राजनीति में भूचाल, निर्मल घोष पर अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, गिरफ्तारी तय। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई पूछताछ के बीच मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि निर्मल घोष चाहे किसी भी गुट में जाए, उसकी गिरफ्तारी तय है और कानून अपना काम करेगा। निर्मल घोष से सीबीआई कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। मंत्री के इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। দেখুন নান্টু ঘোষ কী করবেন সে নান্টু ঘোষের ব্যাপার, তৃণমূল কোন তৃণমূল সঙ্গে কে থাকবে তাদের ব্যাপার, আমাদের তাদের নিয়ে কোনো এখনো পর্যন্ত থানায় বহু এফআইআরও দায়ের হয়েছে অন্যান্য কারণে। আইনের পথে চলবে, উনি অ্যারেস্ট হবেন, উনি যার যে কমিটিতে থাকুন যার সঙ্গেই থাকুন আইনের পথে চলবে। मरम्मत कार्य के लिए आज 16 घंटे बंद रहेगा विद्यासागर सेतु। वैकल्पिक रास्तों से भेजी जा रही गाड़ियां। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला विद्यासागर सेतु आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मरम्मत कार्य के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। पुल पर स्टे केबल, होल्डिंग डाउन केबल और बियरिंग बदलने का काम किया जा रहा है। पुल बंद होने के कारण वाहनों को हाईवे ब्रिज और निवेदिता सेतु की ओर डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक दबाव बढ़ने से यात्रियों को दिन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा ड्र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि।
हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। उत्तर बंगाल दौरे पर अर्जुन सिंह बंद चाय बागानों और उद्योगों पर करेंगे अहम समीक्षा। मंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तर बंगाल पहुंचे श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह उत्तरकन्या में बंद चाय बागानों और अन्य अहम मुद्दों पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नए औद्योगिक नीति से युवाओं को राज्य में रोजगार मिलेगा, बंद चाय बागानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और बंगाल साथ ही उन्होंने राज्य में यूसीसी लागू होने का भी दावा किया। আগেকার সরকার যা পলিসি ছিল তার তো ইন্ডাস্ট্রি অবস্থা দেখেছে। 49 বছর বাংলায় পিছিয়ে গেছে। 49 বছরের মধ্যে 34 বছর বামফ্রন্ট আর 15 বছর তৃণমূল কংগ্রেস। আজকে আমরা পলিসি চেঞ্জ করেছি যাতে ইন্ডাস্ট্রি থাকুক, বাংলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিককে বাইরে যেতে হয় না, পশ্চিম বাংলায় তারা রুজি রোজগার পারবে আমাদের নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা। তার জন্য ওনার এই কথাটা। অনুব্রত মণ্ডল ঋতব্রত ব্যানার্জি গোষ্ঠীতে গেছে, কোথায় গেছে সেটা নিয়ে আমার মন্ত্রী হয়ে প্রথমবার উত্তরবঙ্গ সফর, কি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে না আজকে যে চায় বাগান। मैनागुड़ी में पुलिस का बड़ा एक्शन, लॉरी से 31 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार। मैनागुड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कूचबिहार से मालदा जा रही एक लॉरी से 31 किलो अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस की मौजूदगी का आभास होते ही चालक और उसका सहयोगी लॉरी छोड़कर फरार हो गए। जब्त गांजा की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने लॉरी जब्त कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। 2 कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़क जाम, टायर जलाकर किया प्रदर्शन। उत्तर 24 परगना के बाशिरहाट में 2 कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिजला रोड जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। এই কারণে দেখাতে হচ্ছে যে আমাদের ছেলেপিলের মুখে মানে একটা দাগ দিয়েছে, দিয়ে বলছে যে আমরা বাড়িতে ঢুকে সবাইকে মেরে আসবো। ওনাদের এই বিলুন্দে আমরা চাইছি তাদেরকে গ্রেফতার করুন, গ্রেফতার করে তাদের থানায় ধরে নিয়ে যান। পুলিশ কেন এখনো পর্যন্ত তাদের মানে ধরছে না, তাদের গ্রেফতার করছে না কেন? এটাই আমরাও তো ভয় ভয় করে থাকছি, যেহেতু আমরা স্টেশনে থাকি আমাদের এটাই ভয় পাচ্ছি যে আমাদের ছেলেপিলে আমরা রাত্রির ভিতরে আমরা যে রাত্রে বাড়িতে বেরোতে পারছি না, ভয় পাচ্ছি। তাই ভাবছি যে আমাদের কখন এসে মারবে, কি করবে, এটাই তোমরা ভয় পাচ্ছি। তাই ওনাদের যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনারা গ্রেফতার করুন। ভোলাবুদ্দুর টিএমসি ওরা ওনাদেরই দুষ্কৃতি, ওনারাই মানে এইটা করছে, তাদেরকে ধরার চেষ্টা করুন। কেন পুলিশ ধরছে না, কি কারণ ধরছে না সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। নাকি পুলিশ ওনাদের কথা শুনে চলছে, এটাই আমরা শুনতে চাইছি। नाले में बाइक और कुछ ही दूरी पर पानी में डूबा युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। नदिया के शांतिपुर में आज सुबह एक नाले से अज्ञात युवक का शव और पास में एक बाइक बरामद होने से सनसनी फैल गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। यह हादसा है या हत्या, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा।